So we will see, we had seen only one problem on this property in the previous session. Today's session we'll see more problems on this property. Then we'll see next lecture's topic and then we'll take a quiz. Okay. Now let us quickly recall what we have seen in the previous session. So we have seen two properties. We have used two properties in the previous session. The first one is where we find Laplace transform using division by t property. This we have done extensively in the earlier sessions, but yesterday in previous sessions we had problems based on this. So here we have to find Laplace transform of function f of t upon t. So here this divided by t, when you see this division by t, we know that we have to use division by t property. So how do we do it? So first of all ये division by t को गायब कर देते हैं, जो बचता है उसका Laplace transform find out करते हैं. So first we find Laplace transform of f of t और suppose इसका आंसर आया phi of s. फिर Laplace transform of f of t upon t will be integral of phi of s with respect to s, where the limits are from s to infinity. Okay, so this is one property we had seen. Then the next property which we got introduced to at the towards the end of the previous session was where we can use Laplace transform of derivative property. Okay, so this property can be used when we have to find Laplace transform of derivative of a function. As the name itself suggests, when we have to find Laplace transform of f dash t. Here f dash t means derivative with respect to t of f of t. Okay, so here how do we do it? Here first we find Laplace transform of f of t. Okay, first we find Laplace transform of f of t and suppose that answer comes out to be phi of s. Then for Laplace transform of f dash of t, there is a statement. Then last lecture we had seen how to remember this statement. Okay, here we can be expected to find the Laplace transform of first derivative, second derivative, third derivative and so on. Okay, so here it's important to remember the pattern of how we get the statement. So let us see. So if Laplace transform of f of t is equal to phi of s, then Laplace transform of f dash of t, इसका डेरिवेटिव है यहाँ पर, तो इसका Laplace transform का क्या स्टेटमेंट होगा? सो यू हैव टू डू टू थिंग्स. फर्स्ट राइट हैंड साइड के लिए ये जो राइट हैंड साइड है इसको s के साथ मल्टीप्लाई करो. ओके, वट एवर इज हियर देयर इन द राइट हैंड साइड ऑफ द अर्लियर स्टेटमेंट. ओके, एफ डैश ऑफ टी का Laplace ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, तो Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t विल बी योर अर्लियर स्टेटमेंट. तो इस स्टेटमेंट में जो राइट हैंड साइड है ये पूरे राइट हैंड साइड को s के साथ मल्टीप्लाई करो, तो क्या मिलता है? s इंटू फाई ऑफ s. ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग यू डू. सेकेंड थिंग क्या करना है? सबट्रैक्ट ये जो Laplace ट्रांसफॉर्म के अंदर जो फंक्शन है अर्लियर स्टेटमेंट का लेफ्ट हैंड साइड में, you write down the value of this function at t equal to 0, that is minus f of 0. Now here we know that f of 0 is the value of the function f of t at t equal to 0, या जिसको हम लिमिट फॉर्म में लिख सकते हैं, लिमिट t tends to 0 f of t. Okay, so this is the statement for Laplace transform of first derivative f dash of t. Now suppose you want to find Laplace transform of second derivative of f of t. That is, you want to find Laplace transform of f double dash of t. ये f double dash of t किसका डेरिवेटिव लेकर मिलेगा? If you differentiate f dash of t once, you will get f double dash of t. Okay, तो here we have to consider derivative once, एक बार का डेरिवेटिव कंसीडर करेंगे, तो f dash of t को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो f डबल डैश t मिलेगा. करेक्ट, तो ये वाला स्टेटमेंट अपना अर्लियर स्टेटमेंट बन जाएगा. जब हमें स्टेटमेंट लिखना है Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ f डबल डैश ऑफ t, दिस स्टेटमेंट विल बिकम आर अर्लियर स्टेटमेंट. ओके, तो ये अर्लियर स्टेटमेंट में से इसका स्टेटमेंट कैसे मिलता है? दो चीजें करनी है. फर्स्ट, whatever is there in the right hand side of your earlier statement, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? s के साथ. करेक्ट, ओके, तो इसको s के साथ अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा? Here we have s into phi of s.
इसको अगर s के साथ मल्टीप्लाई किया तो यू गेट s स्क्वेयर इंटू फाइव ऑफ s. हियर वी हैव गॉट माइनस f ऑफ 0. इसको s के साथ मल्टीप्लाई किया तो मिला माइनस s इंटू एफ ऑफ 0. तो ये पहली चीज कर दी हमने, ये अर्लियर स्टेटमेंट के राइट हैंड साइड को s के साथ मल्टीप्लाई किया. दूसरी चीज क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट, दैट इज माइनस, ये अर्लियर स्टेटमेंट में जो लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन है उसका वैल्यू एट 0, so that will be minus f dash at 0. Okay, so this becomes the statement for f double dash t का Laplace transform. All right, fine. Now suppose we want to find out Laplace transform of third derivative of f of t. Okay, that is Laplace transform of f triple dash at t. अब ये थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए किसको डिफरेंशिएट करना है, सेकेंड डेरिवेटिव को. ओके, सेकेंड डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट करोगे तो थर्ड डेरिवेटिव मिलेगा, इजंट इट. तो ये जो सेकेंड डेरिवेटिव वाला स्टेटमेंट है, दिस बिकम्स आवर अर्लियर स्टेटमेंट. तो इस स्टेटमेंट में से हमको इसका लप्लास ट्रांसफॉर्म का स्टेटमेंट कैसे मिलेगा, इसके लिए हमें दो चीजें करनी है. ये जो अर्लियर स्टेटमेंट है इसके राइट हैंड साइड को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, s के साथ. ओके, तो ये जो अर्लियर स्टेटमेंट को s के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज द फर्स्ट थिंग वी डू. लेट अस सी व्हाट वी गेट. यहाँ है s स्क्वेयर इंटू फाइव ऑफ s. इसको अगर आपने s के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा s क्यूब इंटू फाइव ऑफ s. ऑल राइट, the next term you have here is minus s into f of 0. इसको अगर आपने s के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा माइनस एस स्क्वेयर इंटू एफ ऑफ 0. नेक्स्ट टर्म है माइनस एफ डैश ऑफ 0. इसको अगर s के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा माइनस एस इंटू एफ डैश ऑफ 0. तो ये हमने पहली चीज कर दी, अर्लियर स्टेटमेंट के जो राइट हैंड साइड है उसको s के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. व्हाट इज द सेकेंड थिंग वी नीड टू डू, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट अर्लियर स्टेटमेंट का लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन है, लप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं लेना है, सिर्फ जो अंदर फंक्शन है, so that function at t equal to 0. So we subtract f double dash at 0. This is the statement for third derivative. इसी तरह से हम fourth derivative, fifth derivative and so on का statement भी हम लिख सकते हैं. So here I have just written the initial statements. This statement if we have to generalize, yes we can generalize that also. इसका जो generalization है that I want you all to do. Okay, आप like Laplace transform of nth derivative of f of t जो होगा उसका expression कैसा दिखेगा, उसका statement कैसा दिखेगा, this I want you all to generalize and that is a question that I am putting it in the quiz session. Okay, तो आप आराम से उसको इसका pattern देखना, generalize करना and then you can attempt the quiz question. Okay, so this is what we have done in the previous lecture. यहाँ तक कोई doubt है? हेलो, यहाँ तक कोई डाउट है? ओके, देन नेक्स्ट प्रीवियस सेशन में एक डाउट पूछा था. वी वर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन. ओके, थैंक यू डियर्स. किसी को डाउट नहीं है ना? नो, ओके. लास्ट लेक्चर सनमित हैड आस्क्ड दिस डाउट. ये हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे. वी वर ट्राइंग टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर और उसमें ये एक स्टेटमेंट आया था इन बिटवीन जहां पर हमने दो बार इंटीग्रेशन कर दिया एंड वी हैड टू जस्ट सब्स्टिट्यूट द लिमिट. ओके, तो ये वाला जो टर्म था s इंटू लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर, इसमें जब हम इन्फिनिटी डालते हैं वी सेड द आंसर कम्स आउट टू बी 0. तो इसमें डाउट था, ये s के जगह पे जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका इन्फिनिटी आता है, लॉग में जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लॉग 0 आता है. तो दिस इज एक्चुअली इन्फिनिटी इंटू 0. तो ये आंसर 0 कैसे बनता है? ओके, ये डाउट था. तो लास्ट लेक्चर में आई हैड जस्ट वर्बली एक्सप्लेन टू यू कि इसके दो वे है एक्सप्लेन करने का. एक है लोपिताज रूल और दूसरा है ग्राफ. तो ये दोनों एक्सप्लेनेशन मैंने आपके नोट्स में इंक्लूड कर दिए थे और अपलोड किया था गूगल क्लासरूम में. But if you are not still with very clear with that, I can explain this to you again. किसी को चाहिए इसका explanation?
Okay, not required. Yes, required. Okay, all right. So no. Okay. ठीक है. I think few of you all have already understood it. नोट्स चेक करके आपको इसका जो है एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है, बट आई कैन सी सम पीपल हु वांट द एक्सप्लेनेशन. तो जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ दीज पीपल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस. ओके, दोनों एक्सप्लेनेशन दे रहे. इट विल नॉट टेक अ लॉन्ग टाइम. ओके, सो हियर व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड इज ये जो टर्म है s इंटू लॉग ऑफ एस स्क्वेयर प्लस 4/s², इसका हम वैल्यू इन्फिनिटी में फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड लिमिट एज एस टेक्स द वैल्यू इन्फिनिटी, एस टेंस टू इन्फिनिटी, एस इंटू लॉग ऑफ एस स्क्वेयर प्लस 4/s². यहाँ पर आपने एस इक्वल टू इन्फिनिटी डाला तो ये लॉग फंक्शन 0 आता है, ये इन्फिनिटी आता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म. ओके, इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए एक मेथड है लोपिताज रूल. बट लोपिताज रूल काम करता है इफ यू हैव 0/0 फॉर्म या फिर इन्फिनिटी फॉर्म. तो यहाँ पर इट इज इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म, तो यहाँ पर लोपिताज रूल नहीं यूज कर सकते. तो सबसे पहले हम इसको या तो 0/0 फॉर्म में लाएंगे या इन्फिनिटी फॉर्म में. अब वो कैसे करना है, या तो s को डिनोमिनेटर में लेना है या तो log को डिनोमिनेटर में लेना है, दोनों में से एक को डिनोमिनेटर में लेना है. अब यहाँ पर log को डिनोमिनेटर में लेना इज नॉट दैट कंफर्टेबल. s छोटा सा फंक्शन है, इसको डिनोमिनेटर में लेंगे. तो वी गेट लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी, दिस log ऑफ s स्क्वेयर प्लस 4/s² रिमेन्स एज इट इज इन द न्यूमरेटर. ये s जब डिनोमिनेटर में आएगा इट कम्स डाउन एज 1/s. ओके, तो दिस 1/s डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है, तो यू गेट बैक दिस फंक्शन. ओके, नाउ व्हेन यू सब्स्टिट्यूट s इक्वल टू इन्फिनिटी, ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 आएगा. वी नो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में s का पावर सेम है, उसका लॉगरिदम है, तो ये 0 कैसे आता है इसका एक्सप्लेनेशन हमने देखा है. इफ यू लुक एट द डिनोमिनेटर, यहाँ पर अगर आपने इन्फिनिटी डाला यू गेट 1/infinity विच इज 0. सो राइट नाउ दिस इज इन द फॉर्म 0/0 फॉर्म. यहाँ पर लोपिताज रूल यूज कर सकते हैं. ओके, तो लोपिताज रूल क्या है, लोपिताज रूल बोलता है दिस लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेकर न्यूमरेटर में लिखना है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेकर डिनोमिनेटर में लिखना है. ओके, तो ये न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेने के लिए इस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं. तो हियर वी हैव log ऑफ a अपॉन b फॉर्म. वी हैव रिटन दिस एज log a माइनस log b, जहाँ पे log b जो है इट इज log ऑफ s स्क्वेयर विच कैन बी रिटन एज -2 log s. तो ये हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है ताकि डेरिवेटिव लेने में आसानी हो. डिनोमिनेटर वी हैव नॉट टच्ड, वी हैव केप्ट इट एज इट इज. चलो, नाउ दिस इज अगेन वी आर जस्ट सिंप्लीफाइड दिस फॉर डेरिवेटिव. तो चलो अभी लोपितास रूल यूज करते हैं और इसका डेरिवेटिव लेते हैं. तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे, ये फर्स्ट log ऑफ s स्क्वेयर प्लस 4, इसका डेरिवेटिव आएगा 1/s² प्लस 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ s स्क्वेयर प्लस 4 which is 2s plus 0 which is 2s. okay, chain rule, minus 2 into derivative of log s is 1/s. तो ये न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हुआ जिसको हमने न्यूमरेटर में लिख दिया. देन डिनोमिनेटर इज 1/s, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा -1/s². तो इसका डेरिवेटिव हम लेंगे और इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे. सो वी गेट -1/s². ओके, नाउ लेट अस जस्ट सिंप्लीफाई दिस अ बिट. तो लिमिट s टेंस टू 0, 1/s² प्लस 4 इंटू 2s becomes 2s/s² प्लस 4 माइनस 2/s अपॉन -1/s². यहाँ पर न्यूमरेटर में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. तो लेट्स सी व्हाट वी गेट. लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी, नाउ 2s into s gives us 2s square, minus 2 into s square gives us minus 2s square, minus 2 into plus 4 gives us minus 8 upon s square plus 4 into s square plus 4 into s. Then this denominator remains as it is. तो ये हमने यहाँ पर सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया. यहाँ पर अगर आपने देखा ये 2s स्क्वेयर एंड -2s स्क्वेयर विल गेट कैंसल्ड, न्यूमरेटर में बचेगा -8. ओके, अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, सो दिस s स्क्वेयर गोज अप, तो वी गेट -8s स्क्वेयर.
and one minus is here, so that becomes plus 8s square. Okay, so that is how we get plus 8s square here. S square plus 4 into s, this remains as it is. यहाँ पर एक और simplification दिखता है, 1s can get cancelled, तो we get this is limit s tends to infinity 8s upon s square plus 4. अब इसमें जब हम इन्फिनिटी सब्सटीट्यूट करेंगे, 8 इंटू इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 4 इज इन्फिनिटी, तो दिस इज इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म. इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में हम फिर से लोपिताज रूल यूज कर सकते हैं. तो उसके लिए क्या करना है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है और न्यूमरेटर में लिखना है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है और डिनोमिनेटर में लिखना है. 8 इंटू एस, एस का डेरिवेटिव है 1, तो हियर न्यूमरेटर वी गेट इट एज 8. डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s प्लस 4 का डेरिवेटिव 0, तो 2s प्लस 0 इज 2s. सो हियर वी गॉट दिस बाय यूजिंग लोपिताज रूल. यहाँ पर एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, यू कैन सी दैट 2 गेट्स कैंसल्ड, सो वी गेट लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी 4 अपॉन s. नाउ लेट अस पुट s इक्वल टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे s इक्वल टू इन्फिनिटी डालोगे तो यू गेट 4 अपॉन इन्फिनिटी विच इज 0. So this is how we got this term as 0. Okay, तो ये था लोपिताज रूल वाला explanation, जो थोड़ा लेंदी explanation है. Did you all understand this explanation? It is completely calculative, but we all know anything multiplied by 0 is always 0. So why need this explanation? Okay, Anupam, when you say anything multiplied by 0, it is any finite number multiplied by 0 is 0. Okay, कोई भी finite number like 8 into 0 is 0, minus 3 by 2 into 0 is 0, but infinity multiplied by 0 need not be 0 always. Okay, ये जो आप बोल रहे हो ना, anything multiplied by 0, that is applicable only when you have a finite number. तो any finite number multiplied by 0 is 0, but infinity multiplied by 0 need not be 0, उसका value different आ सकता है. Is that clear, Anupam? इसका I think semester 1 में we had seen problems where 0 into infinity form था और इसका आंसर हमको different आया था. That answer need not be 0 always. That answer need not be infinity always. हमने अनुपम, हमने ये भी तो देखा था ना कि anything multiplied by infinity has to be infinity. लेकिन 0 मल्टीप्लाइड बाय इंफिनिटी इज नॉट इंफिनिटी. क्यों? क्योंकि वो स्टेटमेंट था व्हेन वी से एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय इंफिनिटी इट इज अ पॉजिटिव नंबर, सॉरी फाइनाइट नंबर. एनी पॉजिटिव फाइनाइट नंबर मल्टीप्लाइड बाय इंफिनिटी गोज टू इंफिनिटी. एनी नेगेटिव फाइनाइट नंबर मल्टीप्लाइड बाय इंफिनिटी गोज टू माइनस इंफिनिटी. ओके, तो वो फाइनाइट नंबर के लिए था. ओके, नाउ देयर, हाँ, और कोई डाउट है तो पूछना इसमें. ओके, बिकॉज दीज आर स्मॉल थिंग्स जो अगर इसमें आपने वैल्यू में गड़बड़ कर दिया, बिकॉज समटाइम्स इफ इट इज नॉट 0 एंड देन यू राइट 0 देन इट विल बी अ प्रॉब्लम. अपने सिलेबस में इतना इशू नहीं आएगा, वी हैव ओनली दिस वन टाइप. ओके, नाउ इसका मैंने ग्राफिकली भी आपको बताया था. ग्राफिकली इसको दिमाग में रखने के लिए बहुत ईजी होगा. हियर ये जो ग्रीन ग्राफ है ये है अपना एस फंक्शन का. ओके, we are trying to find out the value of s into log of s square plus 4 upon s square at infinity. करेक्ट? तो ये इसका ग्राफ कैसे बिहेव करता है देखते. तो ये आपको दिख रहा है, ये ग्रीन वाला जो ग्राफ है, ये लाइन है, ये s का है, लीनियर ग्राफ. ओके, तो यू कैन सी इट इज मूविंग वेरी स्लोली, इट इज गोइंग टू इन्फिनिटी as s. यहाँ पर x है, but then we are talking about s. तो as s goes to infinity, this will go to infinity, but then it is going to infinity very slowly. Okay, slowly मतलब when s is equal to 2, this will take the value 2, s equals to 3, 3, ऐसे धीरे 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 आगे बढ़ रहा है. Okay, so this is a slow function. नेक्स्ट द रेड ग्राफ जो है, रेड वाला ग्राफ, ये है log ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर का ग्राफ. तो यू कैन सी कि एज एस इज गोइंग टू इन्फिनिटी ये अपना हॉरिजॉन्टल एक्सिस के तरफ आ रहा है, मतलब इट इज टेकिंग द वैल्यू 0. ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा तो इन्फिनिटी, यहाँ एक्सिस के पास आएगा तो इट इज टेकिंग द वैल्यू 0. करेक्ट? बट सी द स्पीड एट विच इट इज कमिंग. हियर यहाँ पे इसका वैल्यू it was here, it was
what is this 6 5 5 and then देखो suddenly नीचे उतर गया, suddenly it has come down, तो this is changing its value at a very fast, बहुत फास्ट स्पीड में इसका वैल्यूज चेंज हो रहा है. सो दिस इज अ वेरी फास्ट ग्राफ. ओके, ये बहुत जल्दी से जीरो की तरफ भाग रहा है. सो दिस ग्राफ इज अ वेरी फास्ट ग्राफ, this graph is a very slow graph, and whenever you add or multiply two graphs, तो उसका जो फाइनल आंसर है समवेयर जो फास्टर ग्राफ है, इट्स लाइक दिस ग्राफ इज पुलिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, सॉरी टुवर्ड्स जीरो, दिस ग्राफ इज पुलिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी. तो जब इसका हम प्रोडक्ट लेंगे, दैट इज मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो स्ट्रॉन्ग वाला फंक्शन है वो उसके तरफ जाएगा. यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाला फंक्शन लॉग फंक्शन है. ओके, एंड दैट यू कैन सी इन द प्लॉट ऑफ s इंटू लॉग ऑफ एस स्क्वेयर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वेयर. इसका ग्राफ है ये ब्लू वाला ग्राफ. ओके, तो ये ब्लू वाला ग्राफ देखो ये ऐसे मूव होता है. नाउ ग्रेजुअली इट इज मूविंग टुवर्ड्स जीरो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के तरफ आ रहा है ना. तो एज एस इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दिस इज मूविंग टू जीरो. सो दिस इज वन मोर वे ऑफ रिमेंबरिंग इट. ओके, हियर I have just shown you the graph in the first quadrant because Laplace transform में 0 to infinity वाला part में right now we are interested in. तो इसके यहाँ पर भी there are parts of the graph which I have not shown you, क्योंकि हमें infinity के तरफ क्या होता है, that is what we are interested. Okay, so this is the graphical way of looking at it. Okay, are we good with this now? ये थोड़ा बहुत समझ में आया? Okay, shall we move to the next problem now? Okay, so now today we are taken this problem. एक प्रॉब्लम हमने किया था प्रीवियस सेशन में लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव प्रॉपर्टी का, तो एक ही किया था. इसका हम और प्रॉब्लम्स करेंगे. विल सी व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. इसके सारे वैरायटी आज देख लेते हैं. ओके, ऑलराइट. So this question is find Laplace transform of derivative with respect to t. अभी डेरिवेटिव के दो नोटेशन होते हैं, एक है वो डैश वाला नोटेशन और एक है डी बाई डी टी. तो अगर f ऑफ t आता है तो डैश वाला नोटेशन यूजुअली यूज करते हैं. यहाँ पर द फंक्शन स्पेसिफाइड तो डी बाई डी टी लिया है. ओके, दिस इज जस्ट नोटेशन. सो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t ऑफ 1 माइनस कॉस 2t अपॉन t. यहाँ पर ये डी बाई डी टी दैट इज डेरिवेटिव को देखा तो क्या पता चला, लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. ये अपॉन टी को देखा तो क्या पता चला, डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी यूज करते हैं. बचा कौन, 1 माइनस कॉस 2t. तो हमें स्टार्ट करना है 1 माइनस कॉस 2t से. सबसे पहले उसका लप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे. नेक्स्ट क्या करना है, अपॉन टी करना है या डेरिवेटिव करना है. इस प्रॉब्लम में देखो हमारे पास चॉइस नहीं है, वी हैव टू गो बाय द ऑर्डर. पहले डेरिवेटिव लेके बाद में डिवाइड नहीं करना है. ये फंक्शन कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है, पहले डिवीजन हुआ है फिर डेरिवेटिव है. तो वी हैव टू यूज डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी फर्स्ट एंड देन लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव वाला प्रॉपर्टी. ओके, तो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले हम देखेंगे लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस 2t. अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है तो we separate this by using linearity property. This gives us Laplace transform of 1 minus Laplace transform of cos 2t. Laplace transform of 1 ये standard formula है, पता है हमें. Laplace transform of cos 2t is also a standard formula, so we can write this down. So Laplace transform of 1 is 1 by s and Laplace transform of cos 2t is s upon s square plus 2 square. So that is minus s upon s square plus 4. So this is Laplace transform of 1 minus cos 2t. Okay, तो हमने Laplace transform of 1 minus cos 2t फाइंड आउट कर लिया. अब हम यूज करेंगे डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी. तो यहाँ पर जब हम t से डिवाइड करेंगे वी गेट Laplace transform of 1 minus cos 2t अपॉन t. तो राइट हैंड साइड में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू s. लिमिट्स विल बी फ्रॉम s टू इन्फिनिटी. ओके, लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड बाय t किया तो राइट हैंड साइड में इंटीग्रेट किया विथ रिस्पेक्ट टू s फ्रॉम s टू इन्फिनिटी. अब देखते हैं ये इंटीग्रल यानी इसको इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन s वाले टर्म को. इसका इंटीग्रल तो हमें पता है इट इज log s. और ये वाले टर्म को इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रल भी हमें पता है इट इज 1 by 2
log of s square plus 4. Okay, so this integration is so easy. Let us write down the integration का values. So 1 by s का integral आ गया log s minus s upon s square plus 4 का integral आ गया half log of s square plus 4. This has to be evaluated from s to infinity. अब यहाँ पर एक वैल्यू है लिमिट, एक लिमिट है इन्फिनिटी, तो हम इसको ऐसे ही सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हैं. ये लॉग को पहले कंबाइन करना है एंड ओनली देन वी हैव टू सब्सटीट्यूट, अदरवाइज इट विल बी इनडिटर्मिनेट फॉर्म. करेक्ट. तो इसको कंबाइन करना है तो दोनों के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए. तो हियर द कोएफिशिएंट इज हाफ, विल गेट कोएफिशिएंट हाफ हियर आल्सो. तो हमने यहाँ पर हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो डिनोमिनेटर का 2 है इसको कॉम्पनसेट करने के लिए न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया. सो वी गेट हाफ इंटू 2 लॉग एस minus half into log of s square plus 4 to be evaluated from s to infinity. Now we can take this half common. तो ये हाफ को कॉमन निकालोगे, यहाँ पर एक 2 बचेगा, इस 2 को हम ऊपर लेते हैं, इट विल बिकम log of s square. So we get half taken common, ये मिलेगा log of s square minus log of s square plus 4 to be evaluated from s to infinity. Now we can combine this using log a minus log b का formula. That gives us half log of s square upon s square plus 4 evaluated from s to infinity. Okay, तो now we are ready to substitute the limit. तो सबसे पहले जब हम s equal to infinity डालेंगे, this is log of numerator upon denominator, और numerator and denominator दोनों का s का power same है, तो this will become 0 at infinity. Okay, so we get half into 0 minus s के जगह पे s डालेंगे तो ये सेम फंक्शन मिलेगा. नेक्स्ट हमें ये माइनस को अंदर ऑब्जर्व करना है, तो दिस विल बिकम रेसिप्रोकल. सो वी गेट द वैल्यू एज हाफ लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर. तो ये बन गया लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस 2t अपॉन t. तो यहाँ तक तो अपना हो गया. अब हमें क्या यूज करना है, डेरिवेटिव property, Laplace transform of derivative property. That is, we have to find Laplace transform of f dash of t. तो लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश ऑफ टी जब आपको फाइंड आउट करना है, यू शुड हैव अ स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ यू विच इज लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी. तो जब हम लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी बोलते हैं, एफ ऑफ टी क्या है, एफ ऑफ टी इज दैट फंक्शन जिसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं. करेक्ट. लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी ना, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी. यहाँ पर डेरिवेटिव ले रहे हैं 1 माइनस कॉस 2t अपॉन टी का, तो यहाँ पर लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव प्रॉपर्टी के लिए दिस बिकम्स आवर एफ ऑफ टी. तो दिस लप्लास ट्रांसफॉर्म वी हैव जस्ट फाउंड आउट, इट इज हाफ इंटू लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर. ओके, नाउ वी कैन राइट डाउन लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश ऑफ टी. इसका स्टेटमेंट क्या आएगा, राइट हैंड साइड को s के साथ मल्टीप्लाई करना माइनस एफ ऑफ टी एट टी इक्वल टू 0. तो राइट हैंड साइड को जब आपने s के साथ मल्टीप्लाई किया, सो यू गेट s बाई 2 इंटू लॉग ऑफ एस स्क्वेयर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वेयर माइनस f एट 0. तो ये स्टेटमेंट बन गया. अब हमें सिर्फ f ऑफ 0 का वैल्यू फाइंड आउट करना है और इसमें सब्सटीट्यूट करना है. सो लेट्स डू दैट. f of 0 का क्या मतलब है, it is the value of f of t as t at t equal to 0, which can be written as limit t tends to 0 f of t. यहाँ पर अपना f of t क्या है, f of t is 1 minus cos 2t upon t. So this becomes limit t tends to 0 1 minus cos 2t upon t. Okay, यहाँ पर अगर आपने t equal to 0 डाला, तो we get 1 minus cos 0. But what is cos 0? Cos 0 is 1. तो यहाँ पर न्यूमरेटर बनता है 1 minus 1 which is 0. तो न्यूमरेटर becomes 0 and t is becoming 0, तो denominator is also becoming 0. तो यहाँ पर अगर आपने t equal to 0 डाला, you are getting 0 upon 0 form. 0 upon 0 फॉर्म आता है लिमिट में, तो कौन सा रूल यूज करना है, लोपिताज रूल. तो लेट अस यूज लोपिताज रूल ओवर हियर. लोपिताज रूल बोलता है दिस वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट ऑफ न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेके न्यूमरेटर में लिखना, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेके डिनोमिनेटर में लिखना. सो लेट अस सी, सो वी हैव लिमिट t टेंड्स टू 0. तो पहले देखते हैं न्यूमरेटर का लिमिट.
तो वन सॉरी न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो 1 का डेरिवेटिव है 0 माइनस cos 2t का डेरिवेटिव आएगा minus sin 2t into derivative of 2t which is 2. Okay, so we get minus sin 2t into 2. तो ये न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेके हमने न्यूमरेटर में लिख दिया। अपॉन डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर लेना है। अब डिनोमिनेटर में है t, इसका डेरिवेटिव आएगा 1, तो वो हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। ओके, तो ये हमने लोपिताज रूल यूज कर दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। यू कैन सी दिस माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस, सो वी गेट लिमिट t टेंड्स टू 0 2 इंटू साइन 2t, ये 2 को हमने पहले लिख दिया, एंड अपॉन 1 नीड नॉट बी रिटन। अब हम इसमें t इक्वल टू 0 डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू साइन 0, एंड साइन 0 इज 0, सो वी गेट दिस एज 0। तो हमने यहाँ पर f ऑफ 0 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है। ओके, सो वी हैव गॉट लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ f डैश ऑफ t इज s अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ s स्क्वायर प्लस 4 अपॉन s स्क्वायर माइनस f ऑफ 0, एंड जो हमारा f ऑफ 0 है वो हमने 0 फाइंड आउट किया है, इसको अब यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं। सो वी गेट लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ f डैश ऑफ t is equal to s by 2 into log of s square plus 4 upon s square minus 0. So this gives us s by 2 into log of s square plus 4 upon s square, and this is the required answer. Okay. Have we understood this problem? किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर, किसी भी स्लाइड में कोई भी कंफ्यूजन है? Okay, good. Shall we move on to the next problem? Okay. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो ये है, you have to find Laplace transform where the given function is, यहाँ पे given function है f of t equal to t plus 1 over the interval 0 to 2 and it is equal to 3 for t greater than 2. t greater than 2 मतलब 2 to infinity वाले इंटरवल में। यहाँ पर दो चीजें फाइंड आउट करना है। We have to find Laplace transform of f dash of t, that is first derivative of f of t, and we have to find Laplace transform of f double dash of t, मतलब f of t का सेकेंड डेरिवेटिव का भी Laplace transform फाइंड आउट करना है। ओके, सो लेट अस सी दिस। तो इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन एंड ऑल, यू सॉ f of t was वन एक्सप्रेशन, एक ही एक्सप्रेशन था, करेक्ट नो? Here we have got two expression. Laplace transform चैप्टर करते वक्त हमने देखा था कि we can find Laplace transform of functions which are piecewise continuous. तो इससे पिछला प्रॉब्लम हमने जो देखा था, the previous problem we had seen, let me just bring this, ये जो प्रॉब्लम है, ओके, यहाँ पर सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन है। when we say Laplace transform or find out the derivative of this, तो ये एक ही एक्सप्रेशन है, और ये एक्सप्रेशन इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, मतलब हियर द फंक्शन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी पीसेस, ओनली वन पीस, एक ही पीस है, एंड दैट इज दिस फंक्शन। ओके, नाउ इन दिस इफ यू सी देयर आर टू एक्सप्रेशंस, मतलब दिस फंक्शन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी पीसेस, यहाँ पर दो पीस है। पहला पीस है 0 to 2 में, इट इज t plus 1, लीनियर ग्राफ है। दूसरा पीस है 2 to infinity, इट इज कांस्टेंट फंक्शन। ओके, तो ये दो पीस वाला फंक्शन है। तो जब when we have like this a function like this, we better visualize it। तो ये सॉरी, ये हमारे पास अपना t एक्सिस है। वी हैव दिस पॉइंट 0 हियर, देन कहीं पर बीच में हमारे पास पॉइंट 2 है, एंड दिस गोज अप टू इंफिनिटी। तो यहाँ पर फंक्शन कैसे डिफाइन है, 0 to 2 पे अपना फंक्शन है t plus 1, 2 to infinity में हमारा फंक्शन है 3। ओके, सो दिस इज हाउ द फंक्शन इज डिफाइंड। अब हमें फाइंड आउट करना है लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ f डैश t, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ f डबल डैश t। इसके लिए सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t, करेक्ट? फिर हम डेरिवेटिव प्रॉपर्टी यूज करके इन दोनों को फाइंड आउट करेंगे। अब इस तरह के फंक्शन के लिए जहां पे दो पीसेस है, लैप्लस ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने का क्या तरीका है हमारे पास?
जब एक ही पीस था, देर वॉज ओनली वन पीस, या ग्रेट सनमित, इट इज बाय डेफिनेशन. When there is only one piece, you have got two ways of finding the Laplace transform. One, using definition. Second, by using the standard formula and properties. Okay, तो using standard formula and properties वाला method ही हम देख रहे हैं, because that is easier than the definition method. बाकी definition method तो हर problem के लिए applicable है, isn't it? बट ये वाला जो है फंक्शन एफ ऑफ टी, यहाँ पर दो पीसेस है, तो हम यहाँ पर स्टैंडर्ड फंक्शन या प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते. तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने का, एंड दैट इज बाय डेफिनेशन मेथड. ओके, तो लेट्स गो फॉर द डेफिनेशन मेथड. डेफिनेशन मेथड में सबसे पहला काम हम लिखते हैं definition of Laplace transform. So by definition, Laplace transform of f of t equal to integral 0 to infinity e raised to minus st f of t dt. I hope we remember this. ये हमने बहुत long ago किया था, right? Almost 2 weeks back we had done this, but yes, we remember this, right? अभी नेक्स्ट चीज क्या करना है, एफ ऑफ टी सब्सटीट्यूट करना है इसमें. बट एफ ऑफ टी का दो एक्सप्रेशन है, तो सब्सटीट्यूट करने के लिए इंटरवल को हमें ब्रेक करना पड़ेगा. सो हियर द फर्स्ट इंटरवल विल बी फ्रॉम 0 to 2. ओके, 0 to 2 में हमारा एफ ऑफ टी है टी प्लस 1, तो ये सब्सटीट्यूट कर दिया. प्लस नेक्स्ट पार्ट ऑफ द इंटरवल इज 2 to infinity, और 2 to infinity में हमारा एफ ऑफ टी है 3, तो ये भी सब्सटीट्यूट कर लिया. तो चलो डेफिनेशन में हमने एफ ऑफ टी सब्सटीट्यूट कर दिया. तो अब नेक्स्ट काम क्या है, ये इंटीग्रेशन को करना. ये जो सेकेंड इंटीग्रल है ये तो इजी है, इसमें 3 जो है कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये 3 को हम इंटीग्रल के बाहर निकाल सकते हैं. तो यू हैव टू जस्ट इंटीग्रेट ई रेज टू माइनस एस टी. बट ये जो पहला वाला इंटीग्रल है, इसमें ई रेज टू माइनस एस टी इंटू टी प्लस 1 है. टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस मल्टीप्लाइड टुगेदर, एक एक्सपोनेंशियल है, एक एल्जीब्रेक है, और हमें उनको इंटीग्रेट करना है. तो यहाँ पर हमें u इंटू वी रूल यूज करना है. कौन सा u इंटू वी रूल, द जनरलाइज्ड u इंटू वी रूल. ओके, तो जनरलाइज्ड u इंटू वी रूल के लिए हमें u चूज करना है बाय लिएट रूल. अकॉर्डिंग टू लिएट रूल, algebraic function comes first, exponential function comes next. LIATE, liate. Okay, तो इसको हम थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं. सो दिस इज इंटीग्रल 0 to 2 t plus 1 पहले इंटू ई रेज टू माइनस एस टी बाद में dt. ये सेकेंड वाले इंटीग्रल में let us take this 3 outside, so we get plus 3 integral 2 to infinity e raised to minus st dt. Okay, now let's do the integration. तो ये u into v का इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म के लिए we write u as it is. तो पहले हमने लिखा t plus 1 as it is into इंटीग्रल ऑफ v, ई रेज टू माइनस एस टी का इंटीग्रल क्या आएगा, ई रेज टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस. टी के साथ कौन मल्टीप्लाइड है, माइनस एस, तो वो डिनोमिनेटर में आएगा. तो u को वैसा का वैसा लिखा, ई रेज टू माइनस एस टी का इंटीग्रल, इट इज ई रेज टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस. तो ये हो गया पहला टर्म. दूसरा टर्म के लिए क्या करना है, यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, तो सबसे पहले हमें साइन चेंज करना है, इट विल बी माइनस. Then here first term will be derivative of the first bracket, okay, into integral of the second bracket. That is how we get the next term. Okay, तो ये first bracket का derivative क्या आएगा, t का derivative आएगा 1 plus 1 का derivative आएगा 0. तो 1 plus 0 is 1. So the first bracket here will be 1, which is derivative of the previous first bracket, multiplied by, यहाँ पर सेकेंड ब्रैकेट क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड ब्रैकेट हियर. अब इसमें अपॉन माइनस एस तो कांस्टेंट है, ई रेज टू माइनस एस टी का इंटीग्रल आएगा ई रेज टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस. तो वी गेट ई रेज टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस द होल स्क्वायर. एक माइनस एस पहले से है, एक और माइनस एस मिला हमें इस इंटीग्रल में से. ओके, अब नेक्स्ट टर्म का साइन क्या होगा, ये माइनस है तो नेक्स्ट टर्म का साइन होगा प्लस. फिर नेक्स्ट टर्म में प्लस, फर्स्ट ब्रैकेट क्या आएगा, ये पिछला फर्स्ट ब्रैकेट का डेरिवेटिव. बट हाँ, 1 मिनट भरत,
ये जो 1 है कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट टर्म विल बी 0. सो दिस इज द यूवी रूल अप्लाइड टू दिस टर्म. यस भरत, कौन सा एक्सप्लेन करना है आपको? यूवी रूल पूरा एक्सप्लेन करना है फिर से? ओके, लेट अस जस्ट गो बैक अ बिट. वी आर यूजिंग जनरलाइज्ड यूवी रूल. अभी ये तो समझ में आ गया, अपना u है t+1, v है e रेस टू माइनस एस टी. ओके, तो ये यूवी रूल यूज करने में हमें सबसे पहला फर्स्ट टर्म हमें लिखना है फ्रॉम द क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम दिस इंटीग्रल में से फर्स्ट टर्म लिखना है. और वो फर्स्ट टर्म कैसे लिखते हैं? आप u को वैसा का वैसा लिखेंगे. ओके, so here u is t+1, so we write here t+1 as it is, multiplied by ये जो v है इसका इंटीग्रल लिखना है. ये v है e रेस टू माइनस एस टी. अब इसका इंटीग्रल होगा विथ रिस्पेक्ट टू t, तो इसका इंटीग्रल e रेस टू माइनस एस टी का इंटीग्रल है e रेस टू माइनस एस टी अपॉन t के साथ जो मल्टीप्लाइड है उसको डिनोमिनेटर में लिखना है. यहाँ पर t के साथ माइनस एस मल्टीप्लाइड है तो डिनोमिनेटर में माइनस एस आएगा. सो इंटीग्रल ऑफ e रेस टू माइनस एस टी इज e रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस. तो ये हमें पहला टर्म मिल गया. अब ये पहले टर्म को यूज करके हम सेकेंड टर्म लिखेंगे. कैसे? सबसे पहले साइन चेंज करना है. यहाँ पर साइन है पॉजिटिव तो नेक्स्ट साइन रहेगा माइनस. ओके, नेक्स्ट क्या करना है, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसका डेरिवेटिव लेना है और उसको यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में लिखना है. तो ये फर्स्ट ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या आएगा? ये t का डेरिवेटिव आएगा 1 प्लस 1 तो कांस्टेंट है, इसमें कोई t नहीं है तो इसका डेरिवेटिव आएगा 0. तो डेरिवेटिव मिलेगा 1 प्लस 0 विच इज 1. तो फर्स्ट ब्रैकेट में हमने लिखा ये फर्स्ट ब्रैकेट का डेरिवेटिव विच इज 1 इनटू यहाँ पर सेकेंड ब्रैकेट कैसे मिलेगा? ये पिछला सेकेंड ब्रैकेट का इंटीग्रल हमें यहाँ लिखना है. तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा? e रेस टू माइनस एस टी का इंटीग्रल आता है e रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस. तो यहाँ पर पहले से एक माइनस एस है तो और एक इंटीग्रेशन के बाद और एक माइनस एस आएगा तो विल गेट माइनस एस द होल स्क्वायर. ओके, तो अभी एक बार ये सेकेंड टर्म लिख दिया तो अब हमें ये सेकेंड टर्म को यूज करके नेक्स्ट टर्म लिखना है. वो क्या आएगा? सबसे पहले क्या करना है, साइन चेंज करना है. ये माइनस है तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? प्लस आएगा. इसको थोड़ा विजुअलाइज करो, मैंने लिखा नहीं है बट विजुअलाइज करो. नेक्स्ट टर्म में ये माइनस है तो नेक्स्ट टर्म आएगा प्लस. ओके, फिर ये फर्स्ट ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेना है और आपको यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में लिखना है. ये फर्स्ट ब्रैकेट क्या है? कांस्टेंट है 1. इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 0. तो इसका 0 यहाँ पर लिख दिया. ओके, देन सेकेंड ब्रैकेट विल बी इसका इंटीग्रल. बट सिंस यहाँ पर एक 0 है, 0 मल्टीप्लाइड विथ एनीथिंग विल बी 0. इसके लिए हमें ये टर्म लिखा नहीं है तो आगे सब 0 आएगा. दैट इज वाई आर इंटीग्रेशन completes here and this we have to evaluate from 0 to 2. ये समझ में आया? Is this understood? ओके, तो अब हम नेक्स्ट वाला टर्म देखते हैं. इसका इंटीग्रल क्या आएगा? ये +3 कांस्टेंट विल रिमेन एज इट इज. e रेस टू माइनस एस टी का इंटीग्रल आएगा e रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस. ओके, एंड दिस हैज टू बी इवेल्युएटेड फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी. तो ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया है. अब हमें क्या करना है? लिमिट सब्सटीट्यूट करना है. ओके, तो लिमिट सब्सटीट्यूट करने से पहले ये जो पहले अंदर जो टर्म है इसको हम थोड़ा अच्छे से लिखते हैं. विल राइट इट अ बिट प्रॉपरली टेकिंग केयर ऑफ द साइन एंड ऑल, ब्रैकेट एंड ऑल. तो क्या होता है, लिमिट सब्सटीट्यूट करने में आसानी होती है, कोई सिंपल सिली मिस्टेक नहीं होगा. ओके, तो इसको अच्छे से लिखना है. मतलब दिस इनटू दिस विल बी, ये साइन माइनस है यहाँ पर, करेक्ट? तो ये माइनस आएगा t+1 इंटू ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन एस. ये पहला वाला लिख दिया अच्छे से. दूसरे वाले में साइन क्या आएगा? यहाँ पर माइनस है, ये माइनस जो है स्क्वायर के अंदर है, स्क्वायर के ब्रैकेट के अंदर है. सो दिस माइनस स्क्वायर इज गोइंग टू बिकम प्लस, सो द साइन इज स्टिल गोइंग टू बी माइनस.
1 इंटू ई रेस टू माइनस एस टी इज ई रेस टू माइनस एस टी, और ये अपने को देगा एस स्क्वेयर, सो वी गेट एस स्क्वेयर. ओके, दिस इज टू बी इवेल्युएटेड फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. तो हमने सिर्फ इसको थोड़ा अच्छी तरह से लिखा. यहाँ पर क्या होने वाला है, प्लस इंटू माइनस इज गोइंग टू गिव अस माइनस 3 इंटू this 3 as it is, e raised to minus st upon s to be evaluated from 2 to infinity. तो ये हमने इसको थोड़ा प्रॉपरली लिख दिया है. नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट द लिमिट. द फर्स्ट लिमिट हियर, लेट्स लुक एट दिस टर्म फर्स्ट. फर्स्ट लिमिट वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इज 2. वी आर गोइंग टू, या हाँ, करेक्ट. ओके, ये जो है composite function, it's not composite function, it is two function added ना. रेस टू क्या है यहाँ पर? नहीं, आई डिडंट. कौन सा? नहीं नहीं, आई डिडंट गेट योर डाउट प्लीज. करेक्ट. हाँ, नहीं नहीं, सी, ये जो है ना t+1, ये पूरा ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेना है हमें. ओके, ये पूरा ब्रैकेट का डेरिवेटिव आप कैसे लोगे? t का डेरिवेटिव प्लस 1 का डेरिवेटिव ना. ये देखो, अपना डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव का स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है, उसमें फॉर्मूला में t का डेरिवेटिव आता है. करेक्ट, t का डेरिवेटिव इज 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0. Then we have the property derivative of addition of two functions. Derivative of a plus b is derivative of a plus derivative of b. तो हमने अलग अलग नहीं किया है, ये पूरा ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेके यहाँ पर लिखा है. तो ये पूरा अंडरस्टूड. ये पूरा ब्रैकेट का डेरिवेटिव 1 कैसे आता है? बिकॉज t का डेरिवेटिव 1 है, प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 है, तो 1 प्लस 0 1, ये उस तरह से आता है. इसको इकट्ठे ही कंसिडर किया है. ओके, हाँ, पावर इज 1, करेक्ट. व्हाट यू आर सेइंग ना, अगर ये t+1 द होल स्क्वायर या क्यूब या रेस टू 4 होता, तो कंपोजिट फंक्शन यानी चेन रूल जो यूज करना है ना, वो यूज करना पड़ता. यहाँ पर पावर 1 है, तो वी कैन जस्ट सिंपली टेक डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म एंड राइट इट हियर. करेक्ट करेक्ट. तो आंसर आता 2 टाइम्स t+1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ t+1. ओके. शुभम सिंह, कंसिडर t इक्वल टू u. शुभम, अगर आपने t को u कंसिडर किया तो +1 कहाँ जाएगा? अगर आपको ऐसे t को u कंसिडर करना है ना, तो फिर आपको यहाँ पर ओपन करना पड़ेगा ब्रैकेट, t इंटू ई रेस टू माइनस एस टी प्लस 1 इंटू ई रेस टू माइनस एस टी. तो यहाँ पर दो इंटीग्रल हो जाएगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा. यहाँ पर t को नहीं u कंसिडर करना है, t+1 को u कंसिडर करना है. चेक. Jagdish, what you have done written is very correct. If t+1 raised to 1, yes, अगर आप raised to n का फॉर्मूला भी यूज करते हैं, तो Jagdish has given the explanation very nicely. Okay, is this okay? Shall we move on? ओके, गुड. सी, एक चीज को देखने के कितने अलग अलग तरीके हैं. नाउ दिस इज वन थिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन मैथ्स. मैथ्स में हर एक चीज को देखने का नजरिया, देर आर मोर देन वन वेज ऑफ लुकिंग एट इट. तो अगर आपको, एंड व्हाट हैपेंस इज एवरीबडी इज हैज लर्नड इट इन अ डिफरेंट वे. अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि कि ये समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज आस्क. ओके, ऑल राइट. नाउ वी आर कमिंग बैक टू दिस. अब हमें सब्सटीट्यूट करना है लिमिट्स. तो सबसे पहले यहाँ पर हम 2 सब्सटीट्यूट करेंगे. तो जब हमने ये फर्स्ट टर्म में t इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट किया, तो देखो हमें क्या मिला, -2 + 1 इज 3
e रेस टू माइनस 2s अपॉन s। ओके, अब हम इसमें 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो मिलेगा माइनस ई रेस टू माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर। तो इसमें हमने पहला लिमिट सब्सटीट्यूट कर दिया। नाउ लेट अस सब्सटीट्यूट द सेकेंड लिमिट। तो सेकेंड लिमिट के लिए सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये साइंस चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस है, माइनस को सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस हो जाएगा। एंड व्हेन यू पुट t इक्वल टू 0 हियर, दिस इज 0 प्लस 1 विच इज 1, e रेस टू माइनस 0s, दैट इज e रेस टू 0s अपॉन s। नेक्स्ट हम यहाँ पर जब 0 डालेंगे तो सेकेंड लिमिट है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस को सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस आएगा, e रेस टू 0, हियर आई हैव रिटन e रेस टू माइनस 0s अपॉन s स्क्वायर। यहाँ पर e रेस टू माइनस 0s लिखो, e रेस टू प्लस 0s लिखो, इट डजेंट मैटर। ओके, तो ये दोनों लिमिट हमने इसमें सब्सटीट्यूट किया है। नाउ लेट अस कम टू दिस। यहाँ पर जब आप सब्सटीट्यूट करोगे, सो वी गेट फर्स्ट माइनस 3, यहाँ पर अगर आपने इन्फिनिटी डाला तो यू गेट ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी अपॉन एस। देन सेकेंड लिमिट के लिए ये साइन चेंज होगा, प्लस 3, व्हेन यू पुट t इक्वल्स टू 2 यू गेट ई रेस टू माइनस 2s अपॉन s। तो ये स्टेप मिला हमें लिमिट सब्सटीट्यूट करके। ओके, तो अब नेक्स्ट हमें इसे सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर देखो एक सिंप्लीफिकेशन, इफ यू लुक एट दिस फर्स्ट टर्म एंड दिस लास्ट टर्म, ये है माइनस 3 ई रेस टू माइनस 2s अपॉन s, ये है प्लस 3 ई रेस टू माइनस 2s अपॉन s। तो ये माइनस है प्लस है, सेम थिंग है, तो ये फर्स्ट और ये लास्ट कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो बीच के बचे हैं इनको हम लिखते हैं। तो दिस विल बी माइनस ई रेस टू माइनस 2s अपॉन s स्क्वायर, प्लस ई रेस टू 0 इज 1, सो वी गेट 1 बाय s, प्लस ई रेस टू, ये भी 0 ही आता है, तो प्लस 1 by s square, e raised to minus infinity is 0, so we get minus 0 upon s. अब ये 0 upon s is 0, so we get e raised to minus 2s upon s square plus 1 by s plus 1 by s square. तो हमें ये क्या मिला है अभी? हमें मिला है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t। यहाँ तक समझ में आया? Okay, any doubt still here? I mean, यहाँ तक समझ में आया सबको? ओके, तो हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सिर्फ f ऑफ t फाइंड किया है अभी तक। इसको यूज करके सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डैश ऑफ t। तो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डैश t विल बी, उसके लिए दो चीज करना है। ये जो अर्लियर स्टेटमेंट है इसके राइट हैंड साइड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? s के साथ। तो इसको s के साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो पहला टर्म मिलेगा माइनस s इंटू ई रेस टू माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म मिलेगा प्लस s इंटू 1 दैट इज s अपॉन s, प्लस s इंटू 1 दैट इज s अपॉन s स्क्वायर। तो ये राइट हैंड साइड को हमने s के साथ मल्टीप्लाई किया। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज यू हैव टू सब्ट्रैक्ट लेफ्ट हैंड साइड में लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर जो फंक्शन है उसको एट t इक्वल टू 0, सो दैट इज माइनस f ऑफ 0। ओके, तो ये हमारा f डैश ऑफ t का स्टेटमेंट बन गया। अब इसमें हमें f ऑफ 0 सब्सटीट्यूट करना है। तो f ऑफ 0 मतलब क्या है? इट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ t एट t इक्वल टू 0, दैट इज इट इज लिमिट t टेंड्स टू 0 f ऑफ t। ओके, अब यहाँ पर हम f of 0 कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट्स सी द ग्राफिकल व्यू ऑफ आवर फंक्शन अगेन। तो ये अपना ग्राफिकल व्यू था। अब हमारा t वैल्यू किसके तरफ जा रहा है? 0 के तरफ जा रहा है। 0 कहाँ पर है? ये रहा 0। ओके, तो एज वी आर मूविंग क्लोजर टू 0, विच इज द फंक्शन विच इज क्लोजर टू 0? यहाँ पर दो फंक्शन है, एक है t प्लस 1 और एक है 3। तो 0 के पास जब हम पहुंच रहे हैं तो कौन सा फंक्शन है वहां पर? t plus 1. Okay, so if you want f of 0 you have to put t equal to 0 in the function which is closer to 0. तो 0 के पास पहुंच रहे तो t plus 1 फंक्शन है, इसमें आपने t equal to 0 डाला तो it will be 0 plus 1, so that is what we get, 0 plus 1 equal to 1. ये समझ में आया f of 0 कैसे फाइंड आउट किया?
ओके, हैव वी अंडरस्टूड हाउ वी गॉट एफ ऑफ जीरो हियर? इसमें फंक्शन को देख के फाइंड आउट करना है। ओके, तो एफ ऑफ जीरो 1 मिल गया। लेट अस सब्सटीट्यूट दिस हियर। और यहाँ पर एक छोटा छोटा सिंप्लीफिकेशन है, देखो एक एक एस कैंसिल होता है, वो कैंसिल करते हैं। सो वी गेट लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश ऑफ टी इक्वल टू, one of the s gets cancelled and we get minus e raised to minus 2s upon s. Here s and s gets cancelled, we get plus 1. Here one s gets cancelled and we get plus 1 by s, minus f of 0 we got it as 1. ओके, अब यहाँ पर देखो ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल होता है, तो वी आर लेफ्ट विथ माइनस ई रेज टू माइनस 2s अपॉन s प्लस 1 अपॉन s. ओके, तो फर्स्ट थिंग हमें फाइंड आउट करना था लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ f डैश ऑफ t, ये हमने फाइंड आउट कर दिया. सो दिस इज अ फर्स्ट आंसर. प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी खत्म नहीं हुआ है, एक और चीज फाइंड आउट करना है हमें, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ f डबल डैश ऑफ t. ओके, सो नाउ लेट अस डू दैट. लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ f डबल डैश t के लिए हमारा स्टेटमेंट हमें कौन सा लिखना है, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ f डैश ऑफ t का, which we got it as minus e raised to minus 2s upon s plus 1 upon s. ओके, अब इसमें लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ f डबल डैश t का स्टेटमेंट लिखेंगे. लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ f डबल डैश t मतलब इसका डेरिवेटिव, व्हाट विल इट बी? दो चीजें करनी है, मल्टीप्लाई द राइट हैंड साइड ऑफ द अर्लियर स्टेटमेंट बाय s माइनस लेफ्ट हैंड साइड में लैप्लस के अंदर जो फंक्शन है दैट एट t इक्वल टू 0. करेक्ट? सो फर्स्ट लेट्स मल्टीप्लाई दिस बाय s, तो ये मिलेगा माइनस s इंटू ई रेज टू माइनस 2s अपॉन s प्लस s इंटू 1 दैट इज s अपॉन s, देन माइनस लेफ्ट हैंड साइड में f डैश t है तो f डैश एट 0. ओके, तो अब इसमें हमें f डैश ऑफ 0 फाइंड आउट करना है. एफ ऑफ 0 जब हमें फाइंड आउट करना है तो हमारे सामने क्या था, एफ ऑफ टी वाला फंक्शन. एफ डैश 0 जब हमें फाइंड आउट करना है तो सामने क्या रहना चाहिए, एफ डैश टी वाला फंक्शन. ओके भाई, बिकॉज एफ डैश 0 मतलब लिमिट टी टेंड्स टू 0 एट एफ डैश टी, तो हमारे सामने एफ डैश टी फंक्शन रहना चाहिए. तो लेट अस सी हाउ टू फाइंड एफ डैश टी वाला फंक्शन. ये एफ डैश टी कैसे जब हमारे पास पीसवाइज कंटिन्यूअस कर्व होता है, फंक्शन होता है, तो उसका एफ डैश टी देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे. ये हम इंटरवल वैसा का वैसा लिखेंगे, 0 टू इन्फिनिटी. ओके, नाउ दिस फंक्शन इज मेड अप ऑफ टू पीसेस, तो इसका डेरिवेटिव फंक्शन विल ऑल्सो कंटेन टू पीसेस. पहला पीस है 0 टू 2, यहाँ पर भी पहला पीस रहेगा 0 टू 2. दूसरा पीस है फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर भी दूसरा पीस रहेगा 2 टू इन्फिनिटी. ओके, अब फर्स्ट पीस इन एफ ऑफ टी, द फर्स्ट पीस ऑफ द फंक्शन इज t प्लस 1. एफ डैश टी में ये जो फर्स्ट पीस रहेगा दैट विल बी डेरिवेटिव ऑफ दिस. तो t प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या है, 1. सो 0 टू 2 में t प्लस 1 है एफ ऑफ टी में, 0 टू 2 में f डैश t विल बी इसका डेरिवेटिव दैट इज 1. ये हम लोग हर एक पीस का डेरिवेटिव लेंगे. ओके, अब 2 टू इन्फिनिटी द सेकेंड पीस, f ऑफ t में द सेकेंड पीस इज द कांस्टेंट फंक्शन 3. इसका डेरिवेटिव लोगे तो यू विल गेट द सेकेंड पीस इन f डैश ऑफ t. ये 3 है, इसका डेरिवेटिव आता है 0. So the second piece is 0. So अपना function f dash t is 1 over the interval 0 to 2 and 0 over the interval 2 to infinity. तो ये f dash t कैसे मिला पता चला? ये f dash t में कोई डाउट है? Have we understood f dash of t? How we got it? Okay. तो अब हमें f dash of 0 find out करना है. f डैश ऑफ 0 मतलब एज वी गो टू 0, जैसे हम 0 के पास पहुंचते हैं तो देखो कौन सा फंक्शन है, यहाँ पर दो फंक्शन है, लेकिन 0 के पास वाला फंक्शन कौन है, 1 है. इस 1 में, ये फंक्शन में हमें t इक्वल टू 0 डालना है, बट यहाँ पर तो कोई t है ही नहीं, मतलब द वैल्यू ऑफ f डैश ऑफ t एज t टेंड्स टू 0 विल बी 1. ओके, so f dash of 0 is 1.
लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस हियर, और यहाँ पर जो कैंसलेशन होता है वो भी साइमल्टेनियसली करते हैं, तो वी गेट दिस लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी इज इक्वल टू, यहाँ पर एस और एस कैंसिल होता है एंड वी गेट माइनस ई रेज टू माइनस टू एस, ये बन जाएगा प्लस वन, और यहाँ पर ये वन मिला है, तो व्हेन वी सब्स्टिट्यूट वी गेट माइनस वन. Here you can see the simplification, plus 1 and minus 1 gets cancelled. So the answer is minus e raised to minus 2s. And that is the second answer, which is Laplace transform of f double dash of t. Have we understood this? यहाँ पर कोई confusion है? All of us have understood this? Okay. All right. I had planned for one more problem today, but it's already 10:47. तो वो वाला problem जो है, we will take it the next lecture. Okay, that is tomorrow's lecture. सिर्फ एक छोटा variety है, छोटा सा problem है, but that is another way in which question can be asked, जहाँ पे आपको Laplace transform of derivative use करके solve करना है. Okay, so we will take that in tomorrow's lecture. और उसके बाद हम next property लेंगे, that is Laplace transform of integral. So that is what we are going to do tomorrow's session. Okay, so as of now, that is all for today. If you have any doubts, please do ask. Okay. Okay, dears. Take care. Bye. Have a nice day. Yeah, someone is having a doubt. Thank. अच्छा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का एक मिनट, अ, एक मिनट, एक किसी का बैकग्राउंड का कॉन्वर्सेशन सुनाई दे रहा है. धीरज, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का है ना?